Good morning, ladies and gentlemen, and boys and girls. Today, on the demand of many persons, we are just coming back with the preparation of trial balance and balance sheet. और हम सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस. जब तक आपका ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो यू कैन नॉट मेक ए बैलेंस शीट. फॉर मेकिंग द बैलेंस शीट यू शुड हैव द बैलेंसेस ऑफ द लेजर. And trial balance is just a presentation of the balances of the ledger. Whatever we have a balance in the ledger, that we put in trial balance. If some ledger has a debit balance, it will go to the debit side of the trial balance. If some ledger has a credit balance, it will go to the credit side of the trial balance. अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में जाएगा ट्रायल बैलेंस का, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में जाएगा. तो हम देखते हैं, मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक ली है जिसके अंदर क्योंकि अगर मैं अपना अलग से लेता तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए सिंपली मैं आपको बताऊंगा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये हम कई बार डिस्कस चुके हैं. रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल. एक पर्सनल, एक रियल और एक इम्पर्सनल. इम्पर्सनल भी कह लो या नॉमिनल कह लो. उसके अलावा जो मैं जैसे पर्सनल में रिसीवर गिवर होता था, रियल में कम्स इन गोज आउट होता था, नॉमिनल में लॉसेस एंड दैट एक्सपेंसेस, इनकम एंड प्रॉफिट, ये सब होते थे. तो एक छोटा सा रूल और बता देता हूँ कि एसेट कब बढ़ेंगे और लायबिलिटीज कब बढ़ेंगी, एसेट कब घटेंगे, लायबिलिटीज कब घटेगी, एक्सपेंसेस कब बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस कब घटेंगे, इनकम कब बढ़ेगी, इनकम कब घटेगी. तो इसका सिंपल सा रूल है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए, इंक्रीज इन एसेट दैट इज गिवन, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. जब भी एसेट बढ़ेगी आपकी डेबिट होगा. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट. जब भी एसेट में डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगी, ये ध्यान रखना. सिमिलरली इंक्रीज इन लॉस और expenses debited and decrease in loss or expenses it is again debited. और लायबिलिटी का आज चलते हैं तो लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है रिवर्स इट विल बी क्रेडिट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है इट विल बी डेबिटेड. इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, then it will be credit, and decrease in capital will be debited. Increase in profit and gains, revenue and gains is credited, and decrease in revenue and gains it always be debited. So we should keep in mind these fundamental rules of debit and credit. Else you can easily determine by following your account, real, nominal, personal, goes in, comes in, receiver, giver. That way you can do also. But this is a different thing I am just explaining to you. Normally what happened, just you are seeing that this is asset, this is liability, and this is capital. It is again a part of liability, expenses, losses, and revenue and gain. These are the cases. Asset, whenever asset is debited, when it increased. Whenever asset is credited, when it decrease. अगर asset increase होती है तो डेबिट होगा, asset decrease होती है तो क्रेडिट होगा. In reverse sense we can say whenever increase in liability is, it will credited, whenever decrease in liability it will debited. Similarly capital is a type of liability, but liability of the proprietor. If increase it credit, if it decrease it will debited. And expenses में same way, increase in debit and decrease credit. And revenue and gain में increase credit, decrease debit. These are the rule of debit and credit for assets, liability, income, profit, expenses, and losses. These are the laws. And even for the capital is a part of a liability, is a proprietor liability actually, because the proprietor takes the risk that profit and loss, that the risk and reward, he is taking the risk, so reward will be of proprietor. Any profit should be credited to the
प्रोप्राइटर, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, हम देखेंगे किस तरह से हम करेंगे। सी, रोहित स्टार्टेड बिजनेस, यू नो, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आएगा और कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे तो कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, तो कैपिटल की तो कौन साइड में जाएगा, क्रेडिट। कितने से की है, 5 लाख से की है, ठीक है, 5 लाख से की है। ये कैपिटल अकाउंट मैंने बना रखा है, तो ये यहाँ कैपिटल अकाउंट एक बना दिया। अभी फिलहाल ये पहली ट्रांजेक्शन की एंट्री 5 लाख, 5 लाख से क्रेडिट हुआ और कैश अकाउंट 5 लाख से डेबिट हुआ। ओपन ए बैंक अकाउंट, सेकंड, देखो सेकंड ट्रांजेक्शन, दीज आर द फंड्स, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, देखो इसके आगे मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000, बैंक अकाउंट खोला तो कैश से पैसे निकल गए और कहाँ गए, बैंक में। बैंक डेबिट हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन की वजह से और कैश क्रेडिट हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन की वजह से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू कैश, ये होगी एंट्री, ठीक है। और थर्ड इज ब्रॉड फर्नीचर फॉर 60,000 एंड इशू चेक, बैंक के थ्रू, यानी उन्होंने फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर असेट बढ़ रही है तो असेट विल बी डेबिटेड, असेट विल बी डेबिटेड, दिस इज बिकॉज ऑफ द एंट्री नंबर 3। और इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, और ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट, एंट्री नंबर 3 की वजह से फर्नीचर डेबिट 60,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000। पहले का कितना बचा हुआ है फर्नीचर, इसमें देखो बैंक अकाउंट में कितना था, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, दिस इज द 4,80,000। इधर 2, इसके आगे 2 ही लिखा, अभी तक 2 ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर ए बिजनेस 1,25,000 एंड एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज गिवन। तो यानी कि 1,25,000 खरीदा आपने, लेकिन उसमें से पे कितना किया आपने, ओनली 1,15,000, 1,15,000, और 10,000 किसमें गया, बिजनेस के लिए 1,25,000 की इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी रामजी लाल से और 10,000 रुपये कैश में दी, बाकी 1,25,000, 1,15,000 रुपये उन्होंने उधार रखा है रामजी लाल से। तो इसमें एक अकाउंट और क्रिएट हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन की वजह से। एक अकाउंट क्या क्रिएट हो जाएगा, देखो इस ट्रांजेक्शन की वजह से एक अकाउंट क्या क्रेडिट होता है हमारा, ये देखिए ये हमारा अकाउंट है, एक बन गया रामजी लाल। रामजी लाल द फोर्थ एंट्री की वजह से रामजी लाल क्या हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, 1,25,000 की प्लांट एंड मशीन थी चौथी एंट्री की, 1,25,000 की तो आ गई पूरी, जिसमें से 10,000 क्या दिया, एडवांस दिया, कैश में से कम हो गया, कैश में से कम हो गया। और रामजी लाल पे क्या आ गया, 1,15,000, 1,15,000 यहाँ और 10,000 है, ये टोटल मिला के क्रेडिट कितना हो गया, 125, 125 का क्रेडिट और 125 का ही डेबिट इस एंट्री की वजह से, ठीक है। हमारी नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर। सब देखो सुमित से उधार में लिया है, सुमित से उधार में लिया है, सुमित क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर के हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, 5वें ट्रांजेक्शन की वजह से 55,000 क्रेडिट, और साथ में गुड्स को जब भी डेबिट करते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 55,000, ये 5वें एंट्री का इफेक्ट है। और 6 एंट्री का इफेक्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस फॉर 35,000। तो देखो गुड्स जा रहे हैं, मैंने गोज आउट, तो 35,000 से आपको सेल क्रेडिट हो जाएगी छठी एंट्री वजह से, और ये उधार में भेजा तो रजनी इंटरप्राइजेस हमारे डेटर है, डेटर बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, डेबिट, जब भी वेबसाइट बढ़ती है डेबिट, ये ध्यान रखना है। देखो 7th एंट्री, पेड द मंथली स्टोर रेंट, जो हमने स्टोर लिखा उसका रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो क्या होगा, रेंट पे करने की वजह से हमारे पास कैश जाएगा और दो कैश गया, कैश क्रेडिट होगा, और हमारी एक्सपेंसेस बढ़ेगा। एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट, तो ये आ गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। पेड 5,000 एंड सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉयज, ऑफिस एम्प्लॉय को इन्होंने सैलरी दी है, कितनी, 5,000 की, 5,000 की सैलरी दी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये सैलरी का इम्पैक्ट क्या आएगा, सैलरी का इम्पैक्ट ये आ रहा है। देखो सैलरी जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और जब भी जाते हैं कैश हमारी तो क्रेडिट। देखो ये अब हमारी लास्ट में देखो क्या क्या हमारे पास अकाउंट्स हैं। देखो एक हमारा कैश अकाउंट है,
एक सैलरी अकाउंट है 2, एक रजनी एंटरप्राइजेज अकाउंट है 3, सेल्स है 4, परचेज है 5, सुमित है 6, प्लांट एंड मशीनरी है 7, कैश ऑलरेडी ले रखे था, ये क्या था हमारा, ये हमारा था 1 और ये था हमारा सैलरी अकाउंट 2, तो इसको अगेन क्या कैश को क्या लिख देते हैं 2 ही है ये, ठीक है, कैश 2 है। 7 तक आ चुके हैं, 7 तक आ चुके हैं। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, देखो पहली ट्रांजेक्शन थी हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द ये जो स्टार्टेड बिजनेस ना, दिस इज अवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो इसमें भी देखो कैश है, कैश के अगेन ये तो 2 लिखा था हमने इसको, कैपिटल अकाउंट 8 और कैश अकाउंट ये 2 ही है। बैंक अकाउंट का हमने कुछ डाला था शायद, बैंक अकाउंट के लिए कुछ पीछे आया है क्या, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का नहीं है तो एक ही जगह बैंक अकाउंट है, इसका मतलब नहीं है, बैंक अकाउंट यहाँ पे भी है, तो नीचे भी एक छोड़ा हुआ है हमने रजनी, अगर इसको लिस्ट से डालें 9 और रजनी को 10, रजनी को 10 डालें, 9 क्या हमारा बैंक अकाउंट है, 9 हमारा बैंक अकाउंट है, कहाँ गया बैंक अकाउंट, ये रहा 9 हमारा बैंक अकाउंट है, और फर्नीचर अकाउंट हो गया 10, फर्नीचर अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट अगेन क्या है हमारा, बैंक अकाउंट 9 है हमारा। तो टोटल हमारे पास 10 लेजर बन गए और 10 लेजर का हमें चिट्ठा दिखाना है, पूरा का पूरा चिट्ठा दिखाना है। तो सबसे पहले क्या है, कैपिटल, कैपिटल का चिट्ठा क्या है 5 लाख पहले क्रेडिट हुई, फिर 10,000 फिर क्रेडिट हुई 6 नंबर एंट्री से, 6 नंबर एंट्री से क्रेडिट हुई, तो ये कितना हो गया 5,10,000 ये, और ये 5 लाख ये क्या आया, ये कैश डेबिट हुआ था। तो कैश का बैलेंस क्या, जो सबसे लेटेस्ट बैलेंस होगा उठाएंगे हम कैश का। देखो कैश सबसे लास्ट में कितनी बची थी, देखो सबसे लास्ट में कैश का ये बैलेंस है 5 लाख में से ये सारे माइनस कर दो, 480 10 90 497, यानी कैश कितना बच गया सिर्फ 2500। और क्या कौन सी साइड ज्यादा है इसकी, डेबिट, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। सिमिलरली क्या प्लांटर मशीनरी ये कौन साइड में है, डेबिट में, तो ये बच गया 1,25,000 है डेबिट, तो ये भी क्या आएगा ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आएगा। कैश अकाउंट का लास्ट का हमने देख लिया, सैलरी अकाउंट का एक ही है, सैलरी अकाउंट भी एक ही है, तो ये भी कहाँ आएगा ट्रायल बैलेंस के, क्यों डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा ये, ठीक है। सारे अकाउंट देखो, परचेज देखो, परचेज सिर्फ डेबिट है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस के कौन सी साइड में आएगा, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा। और देखो ये सुमित है, सुमित तो क्रेडिट है, तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएगा। जो सी साइड बड़ी है उसी वही साइड का बैलेंस बनता है। सेल्स है, देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो सेल्स भी कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ रहे हो, ये चीजें हैं सारी चीज हमारे ध्यान रखना है। वो यहाँ पे तो इन्होंने इवन प्रॉफिट भी बुक कर दिया, 25,000 रुपए की चीज 35,000 में बेची, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे लेकिन हम इसमें बुक नहीं करेंगे, इसे अलग से 35 का दिखाएंगे, तो वैसे रहेगा। प्रॉफिट हम इसमें अलग से नहीं दिखा रहे, हम ऐसे दिखाया हुआ है ऊपर एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे इसे। अब जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, अब देखो जो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगा, जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ट्रायल बैलेंस इस तरह से होता है, ट्रायल बैलेंस ये देखो, ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये दो साइड होगी, डेबिट एंड क्रेडिट। या सेल्स क्या था, सेल्स क्रेडिट था, जितना सेल हुई थी 35,000 की आपने क्रेडिट में दे मारी। ऐसे ही परचेज कहाँ जा रहेगा, डेबिट में जाएगा। असेट जो भी थे फर्नीचर थे, फर्नीचर कहाँ जा रहा है, ये भी हमारा डेबिट में जा रहा है। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। और अगली बार मैं आपको ट्रायल बैलेंस के साथ मिलूंगा, ट्रायल बैलेंस बना होगा, जिससे ट्रायल बैलेंस के बेस से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, शब्बा खैर।